Let's start. Your today's topic is adding page number. Means how to add page number in a document. You can add page numbers in your document as you edit a document to add or remove text, word, adjust the document and the page number accordingly. Uh, like, uh, mm, like in your document you have 100 pages. Okay, you make a document in which you have 100 pages, and in 100 pages you delete some pages in between the document, like you delete 51 and 52 page number. Okay, so you see the page number is automatically arrange the order. Okay, like you in when you insert the page number in your document, like 1 2 3 4 5 6. Okay, and when you like you have it only 10 page number and you delete and you set the page number in it, you see the every page number have the marking is page number 1, page number 2, page number 3, like page number 10, and you delete page number 3. Page number 3 delete, you see the page number is adjust or arrange automatically. Now you have only 9 page number, 1 to 9. Okay, I show you with the example also how to add page number in a document. Okay, adding page number to longer document can help you keep the range in pages in a order. पेज नंबर आपको इसलिए अरेंज इसलिए भी हेल्पफुल है पेज नंबर लगाना डॉक्यूमेंट में, जिससे आपको एक आइडेंटिफाई, अगर आप हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट को निकालते हो तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि किसके बाद कौन सा पेज आएगा. ओके, मेनली इसका जो हमें जो आपको बेनिफिट है वो हार्ड कॉपी के बाद, प्रिंटिंग के बाद भी हमें बेनिफिट होता है. आपको पेज नंबर में भी देख मार्किंग भी होती है पेज नंबर. ओके, वरना आपको नॉर्मली हाथ से फिर उसमें लिखना होगा पेज नंबर 1 2. ओके, like how to insert. First, you see, click on a insert tab on the ribbon, and in which you see the click on page number button. Click on desired location of the number. Click on desired page number style, and you can scroll bar to see more style. Okay, first thing is you can click on insert tab. Like I open the word, I click in insert tab. Okay, in which you see in a header footer group up you see the ribbon is appear in which you see सब देखो एक header footer group के अंदर you see the page number option, and page number you choose first option top to bottom, and in which you see the many style we have like this. Okay, like I choose this page number 1. Okay, आप पेज नंबर कहीं पर भी लगा सकते हो, ऊपर लगा दो. टॉप को बोलते हैं हम हेडर और नीचे को बोलते हैं फुटर. आप फुटर में अरेंज करो या अपने इसमें अरेंज करो हेडर में. आप पेज नंबर कहीं पर भी लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी हेडर में पेज नंबर अरेंज कर दिया है अपना. अब यू सी, इफ आई गो इन अ सेकंड पेज नंबर, लाइक मैं अपने सेकंड पेज नंबर पे जाता हूँ. अब देखोगे सेकंड पेज नंबर पे, सेकंड पेज पे ऑटोमेटिकली 2 लिखा आएगा लाइक दिस. इफ आई गो इन अ थर्ड पेज नंबर, you see third page number is appear, third number is appear automatically. ओके, लाइक दिस. आप पेज को अगर नेक्स्ट टेक्स्ट पेज नंबर पे डॉक्यूमेंट कर लिखते रहोगे या अपने डॉक्यूमेंट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर लगाओगे, उसमें भी एज इट इज ऐसे ही अपना आप पेज नंबर को लगा सकते हो. ओके, ये अभी हमने हेडर में लगाया है पेज नंबर, हम फुटर में लगाते हैं. ओके, like if you want to add page number in a top of the page, you see the top of the page. ये क्योंकि टॉप ऑफ द पेज पेज के टॉप पे लगा था और बॉटम में लगाना है तो बॉटम ऑफ द पेज चूज करेंगे हम इसमें. जो भी आपको पेज नंबर सेलेक्ट करना है इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस. यू सी, नाउ माय पेज number is appear in a footer. Header is the top part of a page and footer is the bottom part of your page. This is a header and this is a footer. Now you see the page number is appear in a footer like this, and now you move in a second page number. जब हम सेकंड पेज पे जाएंगे आप देखोगे कि आपके फूटर में ऑटोमेटिकली सेकंड पेज नंबर शो करेगा. यू सी फर्स्ट and now second and so on. Third, fourth, like third, fourth.
जैसे जैसे हम डॉक्यूमेंट हमारा आगे बढ़ता रहेगा, पेज नंबर भी ऑटोमेटिकली अपीयर होते रहेंगे। और आपको कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आपने पहले से क्रिएट कर रखा है, 10 to 15 पेजेस का है, और आप उसमें पेज नंबर लगाना चाहते हो, तो आप ऑटोमेटिकली सेम यही फीचर यूज करो। इंसर्ट में टॉप पे लगाना है, टॉप पेज यूज करोगे। और बॉटम में लगाना है तो बॉटम वाला पेज यूज करोगे, ऑप्शन यूज चूज करोगे। टॉप ऑफ द पेज, अगर पेज के टॉप पे पेज नंबर लगाना है तो टॉप ऑफ द पेज, अगर बॉटम पे लगाना है तो बॉटम ऑफ द पेज। और स्टाइल, इसमें काफी सारे स्टाइल्स हैं, को भी अपनी पसंद का स्टाइल चूज कर सकते हो, और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके हर पेज पे पेज नंबर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? अंडरस्टैंड? शो योर थंब इफ यू अंडरस्टैंड। शो योर थंब ओनली, लाइक दिस, और टाइप इन अ chat box yes sir. Understand everybody? Okay, okay. Now move on second topic or next page. Okay. Now again share the screen. You see इसमें भी सेम यही चीज प्रेजेंट, यही चीज बता रखी है आपको कि कैसे पेज नंबर हम लगाएंगे, किस तरह से पेज नंबर आपको शो करेंगे। अब लाइक नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग लाइन नंबर। लाइक आपने एक पैराग्राफ क्रिएट कर रखा है लाइक दिस। ओके, इसमें अब देखोगे इसमें एक लाइन शो हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइन है। अगर हम हेडिंग को ऐड कर ले तो 13 हो जाएगा। तो हम इस लाइन को नंबर्स अगर देना है तो कैसे देंगे? ओके, ये मेनली किस लिए में हेल्प करता है? हमारी प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है। लाइक आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, या जो नॉर्मली बुक्स लिखी जाती हैं, तो उनकी लिखने के बाद उनकी राइटिंग आपके लैपटॉप पे टाइप होती है, वर्ड में टाइप होती है, फिर उस स्पेशली प्रूफ रीडिंग में हेल्प होता है। लाइक आपको एक एरर बतानी है तो आप लाइन नंबर लिख के एरर बता सकते हो कि इस लाइन नंबर में ये एरर है। ये मेनली बेसिकली हमारी प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है। एंड यू और हमें नंबर लाइन दिखिए यहाँ पर, प्रिंट लेआउट व्यू में हम इसे नंबर लाइन को शो भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ओके, ये लेफ्ट साइड पे आपको नंबर लाइन शो होगी। एंड हाउ टू इंसर्ट अ नंबर लाइन? फर्स्ट यू कैन गो इन अ print layout option. You see print layout option, click on page layout option. In this you have the number line option. ओके, फर्स्ट इससे पहले हमारे पास कुछ होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए जिसमें हम नंबर लाइन लगा सकें। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कुछ नॉर्मली अपनी साइड से लिखते हैं लाइक दिस। ओके, इसको हम कॉपी पेस्ट करके सेम को आगे रिपीट करते चले जाएंगे लाइक दिस। कि हमने कुछ लाइंस लिखी है इसमें, यू सी। अब इसमें आपको नंबर लाइन लगानी है। इन हाउ, कैसे लगाओगे? फर्स्ट यू कैन गो इन लेआउट ऑप्शन, इन विच द पेज लेआउट ऑप्शन। ओके, when you go in a layout option, you see the in a page setup, you see the number line option. Okay, when you click on number line option, it show you some multiple option like continuous, restart each page, restart each section, in which we choose continuous option. When you choose continuous option, you see the number line is here। आपको हर लाइन का एक नंबर मिल जाएगा। ये मीन्स लास्ट में स्पेसिंग है, स्पेसिंग है इसलिए आपको ये नंबर लाइंस में शो हो रही है, नंबर शो हो रहा है। आपको इसमें कुछ लिखा नहीं है, बट स्पेस भी एक टेक्स्ट में काउंट होता है। ओके, राइट। अब जैसे आप एंटर करते जाओगे, ये नंबरिंग नहीं है, ये नंबर लाइन लाइन नंबर है। नंबरिंग और लाइन नंबर में फर्क है। ओके, इसे नंबर नंबरिंग मत समझना, लाइक दिस। अब अब नॉर्मली अगर आपने एक बार लाइन नंबर्स लगा दिया और आप एंटर करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली उस लाइन को नंबर्स मिलता रहेगा। खाली आप ब्लैंक स्पेस करो, क्योंकि अगर आप ब्लैंक नॉर्मली नंबरिंग में करते हो तो नंबर नहीं शो होता है, नेक्स्ट नंबर नहीं शो होता है। तो नंबरिंग में आप जितना डॉक्यूमेंट को आगे एक्सटेंड करते रहोगे, नंबर लाइन नंबर्स आपको शो होते रहेंगे लाइक दैट। ओके, ओके। अगर आपको लाइन नंबर हटाना है तो आप दोबारा से नन पे क्लिक कर दो, लाइन नंबर डिसअपीयर हो जाएगी, लाइन नंबर्स। ओके, okay, so word assign line number to each line of your document. Every line you have now line number if you use the line number feature.
अगर आपको हटाना है तो आप उसमें नन फीचर्स को, इस नन ऑप्शन को दोबारा से यूज कर सकते हो. Next is creating a newspaper column. You see in a newspaper we have a columns like that. Okay, I show you how to create. This is also create with the help of newspaper. These newspaper column option we also see in a magazines, in a newsletter, in a brochures. Also we use a newspaper column option. This display the text Okay, in sir. the form of column. Okay, in this feature is used to display the Yes, sir. text in the form of columns. ये आपको columns की form होता है इसमें. Okay, जो आपका text होता है. You have seen in the newspaper, जो आपने newspaper में भी देखा होगा, और newspaper में देखना है जिसने अब तक नहीं देखा है. See in the newspaper. Creating columns is useful in documents. Okay, such as newsletter. Normally creating columns किसमें useful है, किस टाइप के documents में useful है. Like अगर हम newsletter लिख रहे हैं, कोई news लिख रहे हैं, and brochures बना रहे हैं, उसमें उसके लिए न्यूज हम ये न्यूज़पेपर कॉलम ऑप्शंस यूज करते हैं. द स्टेप्स टू अप्लाई न्यूज़पेपर कॉलम, ये आपके कुछ स्टेप है. फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट. आपको जिस सेलेक्ट को न्यूज़पेपर कॉलम में कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे. एंड देन गो इन अ पेज लेआउट टैब एंड then click on column button in which you have multiple column option like 2, 3, 4, 5. I also show you with the help of example. फर्स्ट फर्स्ट आपके पास कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, तो हम कुछ टाइप करते हैं इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी. लाइक दिस इज द कंप्यूटर में लिखता हूँ और स्पेस करके बार को कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो ये एक पैराग्राफ टाइप बन जाएगा. इससे आपको थोड़ा हेल्प होगा समझने में. लाइक दिस किसी हमने एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया लाइक दिस. थोड़ा और उसे बड़ा कर देते हैं लाइक दिस. ओके, अब हमें इसे न्यूज़पेपर कॉलम में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट सेलेक्ट दैट डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट दैट टेक्स्ट. हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया. एंड आफ्टर दैट गो इन अ पेज लेआउट टैब. Okay, this is the layout tab. Layout tab is also called page layout tab because जो आपका वर्ड का नेक्स्ट का अपग्रेडिंग वर्जन है उसमें ये layout tab हो गया है. इसे layout tab बोलते हैं, पेज लेआउट नहीं बोलते. When you click on page layout tab, you see the column option in which you should show the multiple option 2, 3, left, right. Okay, if I choose to, you see अब ये कम है इसलिए सारा एक ही कॉलम में आ गया है. मैं थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप से शो होता है. इस कॉलम को फुल डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं. ये हमने पूरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है, पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट फिल कर दिया है. अब मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ. मुझे इसको कॉलम लगाता हूँ, इसमें टू लगाता हूँ सबसे पहले. टू. You see that your text is divided into two columns. Okay, like if you choose three, it's look like this. Like if you choose left, you see it's look like this. Mm. Some portion in the left side and some portion or more portion in the right side. And like this, if you choose right, you have like this, in which we have a more column option also. Like if you want to make the 3, 4 columns in it, like this. Like you see the 4 columns. By default, we have 2 or 3 columns. You can also extend of this column option. Okay, this is also the very easy option, but first you select the text and then apply the column option. Okay, this working is very beautiful and like this. Okay, ये आपको टेक्स्ट को इस तरह से शो कर देगा. ये मेनली ये किसमें यूज होता है, ब्राउजर्स में जब हमें यूज करना होता है, ब्राउजर्स मेंटेन करने होते हैं. न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल कॉलम्स में लिखे होते हैं ज्यादातर, तो उसमें हम ये फीचर्स यूज करते हैं न्यूज़पेपर कॉलम का. ओके, कॉलम ऑप्शन यूज करते हैं. ओके, नाउ यू नो हाउ टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर कॉलम इन योर डॉक्यूमेंट. इसमें भी आपको सेम स्टेप्स क्रिएट कर रखे हैं, बता रखे हैं. Okay. Now your next topic is creating table. How to create a table in a MS Word. This is also a very important and big topic in this chapter. How to create table. First, something you use table to arrange all or part of your document into columns in row. Like if you want to arrange your document in a row and column option, we use table option. Okay, the table option built, ये इनबिल्ट ऑप्शन है एमएस वर्ड में.
आपको नॉर्मली सब वर्ड, जितने भी वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड एमएस वर्ड के अलावा सब में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये सब में मिलता है। Okay, this is a useful formatting tool which allow you to easily insert row and column। ये formatting tool है जो आपको allow करता है कि आप easily आप कोई भी एक row column insert कर सकते हो। Like you create, I also show you in a next topic how to create column and how to create row and how to insert in a column row। Okay, the table in MS Word consists of a grid of boxes arranged in column सब like spreadsheet, या कुछ जब जब आपने MS Excel खोला है ना, कुछ इस टाइप से आप वर्ड में एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं with the help of table option। Tables can be customized are also useful for various tasks such as presenting textual information and numeric data। Like if you want to present textual information, like आपको text को numeric data को एक साथ present करना है, तो टेबल एक काफी अच्छा फीचर है इसे दिखाने का। लाइक आपको स्टूडेंट्स के वर्ड में ही आपको एक स्टूडेंट का कॉलम बनाना है टेबल में। लाइक आपको उनकी नंबरिंग देनी है 1 2 3, और उनके नाम देने हैं, और उसके आगे उनके मार्क्स देने हैं वर्ड में। तो इसके लिए हम एक सबसे जो अच्छा ऑप्शन है जो यूज करने के लिए, वो आपका टेबल ऑप्शन है। Okay, you can create a blank table and apply a various variety of style and formatting to existing tables। आप अपनी existing tables में भी different different style features use कर सकते हो, और एक न्यू एक स्टाइल से और एक अलग फॉर्मेटिंग से भी आप एक न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हो। ये सब चीज आपको इसमें सिखाई जाएगी, हाउ टू क्रिएट इंसर्ट टेबल एंड हाउ टू मॉडिफाई एंड हाउ टू फॉर्मेटिंग। ओके, and first thing is how to create table is, if you want to create a table, first you click there where you want to click the, sorry, where you want to insert a table first। like this is the word document, and आपको टेबल मिलेगी कहाँ पर, आपको इंसर्ट के अंदर टेबल ऑप्शन मिलता है, लाइक दिस इज ओके इन अ टेबल्स ग्रुप। ओके, लाइक फर्स्ट आपको टेबल क्रिएट करना है, एंड कहाँ पर क्रिएट करना है, जहां पर आपका कर्सर क्लिक होगा वहीं पर आपको क्रिएट करना है। लाइक आपको मुझे स्टार्टिंग में टेबल क्रिएट करना है, and I go and insert tab and in a table option click on this। and इसमें आपको मैक्सिमम जो आपको आप सीधा सिलेक्ट करके मैक्सिमम 10 by 8 का टेबल क्रिएट कर सकते हो। 10 by 8 मीन्स 10 by 8 मीन्स 10 columns and 8 rows मैक्सिमम। आप नॉर्मली ऐसे ड्रैग करके इतना का टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इससे बड़ा टेबल सेलेक्ट करना है, इससे बड़ा टेबल चाहिए, तो आपको इंसर्ट टेबल में जाना होगा, और यहाँ पर कॉलम्स एंड रो टाइप करने होंगे। लाइक मुझे 10 कॉलम से ज्यादा कॉलम चाहिए, लाइक 11, और रो से ज्यादा 8 रो से ज्यादा रो चाहिए, तो मुझे फिर यहाँ पर टाइप करना होगा, लाइक मुझे 9 रो चाहिए, and this you see now the both thing is now appear we have in this chapter। देखो इस टाइप से इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने कॉलम फीचर यूज कर रखा है, इसे हटा देते हैं कॉलम फीचर को। यू सी इस टाइप से आपको शो होगा ये। ओके, ऐसे हम टेबल क्रिएट करते हैं। लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट, आपको क्रिएट करना है टेबल, और उसमें आपको सिर्फ 2 कॉलम और 2 रो चाहिए, आप नॉर्मली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी 2 कॉलम्स आ गए और रो भी 2 आ गई, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो सिंपल। आप नॉर्मल आपको छोटी छोटी टेबल्स बनानी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, लाइक दिस अब मुझे 3 कॉलम चाहिए, मैंने 3 कॉलम ले लिए, 4 भी चाहिए तो 4 सेलेक्ट कर लूंगा। ये काम आप डायरेक्ट इंसर्ट टेबल टेबल से भी कर सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, लाइक मुझे 3 कॉलम चाहिए अपने टेबल में, और 4 रोज चाहिए, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिखोगे, यहाँ से भी हो जाएगा, और वहां से भी सिलेक्ट करके इजिली वर्क हो जाता है। ओके, एक चीज आपको दिखा देता हूँ मैं, जैसे आपने पैराग्राफ लिखा, जैसे कोई भी पहले हम लिखते आ रहे हैं उसे लिख देते हैं दोबारा से, दिस इज द कंप्यूटर करके आपने एक पैराग्राफ लिखा। पैराग्राफ किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक दिस आपने एक पैराग्राफ लिखा। ओके, आपने एंटर करा, आपने दोबारा से पैराग्राफ लिखा, एंटर नेक्स्ट पैराग्राफ। लाइक आपको टेबल फर्स्ट पैराग्राफ के बाद लगाना है, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ही अपने कर्सर को पॉइंट करना होगा, तो जहां आपका कर्सर होगा वहीं टेबल बनेगा। अगर मुझे टेबल यहाँ बनाना है तो अपने कर्सर को मुझे वहां तक ले जाना होगा, लाइक दिस। अब मैं अपनी टेबल यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आपको टेक्स्ट के बीच में टेबल बनाना है तो अपने कर्सर को वहां पॉइंट करना होगा जहां से आपको अपनी टेबल क्रिएट करनी है। अगर आपकी कर्सर ऊपर होगा तो वहीं से टेबल बनेगा, नीचे होगा तो वहां से टेबल बनेगा। अगर मिडिल में बनाना है तो मिडिल में ले जाकर अपने कर्सर को पॉइंट आउट करना होगा, फिर आप वहीं से ही अपनी, जहां पर आप कर्सर होगा वहां से आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हो। ओके,